جب تک ایک مدرس تعلیم کو، تدریس کو پیشن اور مشن نہیں سمجھے گا، میری بات کو دھیان سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ ایک مدرس اپنے تدریس کو، اپنے کام کو پیشن اور مشن نہیں سمجھتا ہے تو ایسا مدرس کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ مدارس و مکاتب کا گرتا معیار، اسباب و علاج، اس موضوع کی وضاحت کے لیے جس شخصیت کو ہم نے منتخب کیا ہے وہ ہے ڈاکٹر حفیظ الرحمان صنابری حفظہ اللہ وتولہ۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ڈاکٹر حفیظ الرحمان صنابری حفظہ اللہ وتولہ جامعہ عالیہ عربیہ، جو کہ ہندوستان کا ایک معروف و مشہور ادارہ ہے، آپ وہاں پر تقریباً 6 سال سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ فی الحال آپ وہاں پر پرنسپل ہیں، اور چونکہ آپ کا تعلق ایک جامعہ سے ہے، ایک مدرسہ سے ہے، لہٰذا اگر آپ اس موضوع کی وضاحت کریں گے تو انشاءاللہ مکمل حق ادا کریں گے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم یعنی عالمیت اور فضیلت کی تعلیم جامعہ اسلامیہ سنابل سے حاصل کی ہے۔ اسی طرح سے آپ نے اپنی ڈاکٹریٹ یعنی پی ایچ ڈی جواہر لال نہرو یونیورسٹی، اسی طرح سے DU دہلی یونیورسٹی سے مکمل کی ہے۔ میں بسط احترام شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں آپ تشریف لائیں، مدارس و مکاتب کا گرتا معیار، اسباب و علاج، اس موضوع پر روشنی ڈالیں۔ فضیلت الشیخ ڈاکٹر حفیظ الرحمان صنابری حفظہ اللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ صدر ذی وقار، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، ہمارے سامنے تشریف فرما
नौजवानान, प्यारे बच्चों, मेरी माओ और बहनों और इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे अजीज़ान गिरामी, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र है, एहसान है कि आज के दिन हम तमाम हजरात को मुल्क नेपाल के रूपंदेही के एक गांव पड़रिया नामी मस्जिद में, पड़रिया नामी गांव की मस्जिद में इकट्ठा किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन का लाख लाख शुक्र है, जिसके लिए अल-मज्द एजुकेशनल एंड वेलफेयर सेंटर के तमाम जिम्मेदारान का शुक्र अदा करता हूं और मुबारकबादी पेश करता हूं कि आपने इतना अजीमुशान प्रोग्राम रचाया और मुल्क और बैरून मुल्क के बड़े बड़े उलमाए किराम को मदऊ किया। अजीज़ान गिरामी, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको मौका नहीं देता। बहुत साफ लफ्जों में कहता हूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको मौका नहीं देता है। जो आगे बढ़ता है और दीन की खिदमत करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको तौफीक देता है। ये हमारे बच्चे जिन्होंने प्रोग्राम को रचाया, बॉर्डर से लेकर रूपंदेही और इस गांव तक हमारे बच्चे कदम कदम पर मिलते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। ये नौजवान है जिनको देखकर असहाबे कहफ कि वो नौजवान याद आ रहे हैं जिन्होंने सब्र किया, मेहनत किया और मेहनत करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के पैगाम को दूसरों तक पहुंचाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से यही दुआ करूंगा कि हमारे इन बच्चों को जो आज इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए पूरे तौर पर लगे हुए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता करे और इस प्रोग्राम के रचाने के लिए जिन लोगों ने में ताउन दिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको भी तरक्की दे, उनको भी इज्जत दे। अजीज़ान गिरामी, आज के इस प्रोग्राम में मेरा जो मौजू है वो मौजू है मदारिस मकातिब का गिरता हुआ मेयार, असबाब और तदारुक इलाज। मदारिस किसको कहते हैं, मकातिब किसको कहते हैं? मकतब की जमा मकातिब, मदरसा की जमा मदारिस। ये दोनों इंस्टीट्यूशंस हैं, ये दोनों दरसगाहें हैं। एक लो लेवल की दरसगाह है, एक हाई लेवल की दरसगाह है, लेकिन दोनों दरसगाहों से काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं बुलंद होती हैं। दोनों दरसगाहों से उम्मत का फायदा होता है, दोनों दरसगाहों से उम्मत के अफराद बनकर निकलते हैं। ये जितने भी लोग इस मस्जिद में बैठे हैं, सारे लोगों का ताल्लुक किसी ना किसी तरीके से या किसी ना किसी तरह किसी मकतब से होगा या किसी मदरसे से होगा। ये मकातिब मदारिस आपकी इब्तदाई जिंदगी से लेकर इंतहाई जिंदगी तक जितने भी मसाइल दरपेश आते हैं, सारे मसाइल का हल पेश करते हैं। ये मदारिस जिनको आज शुकूक व शुबहात की निगाह से देखा जाता है, जिनको लोगों ने, जिनकी तालीमात को लोगों ने जीरो करने की हर मुमकिन कोशिश की है, ये यही मकातिब, यही मदारिस हैं जिनका तार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा की उस पहली वही से मिलता है, जिस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल होती है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़,
जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्ताद बन कर आते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाते हैं और उनको पढ़ने का हुक्म देते हैं। गारे हिरा के अंदर पहली वही आती है और अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैगाम ये होता है, इक़रा, पढ़। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म होता है। उलमाए किराम यहाँ पर तशरीफ फरमा है। कायदा जानते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी चीज का हुक्म देता है, अगर उस हुक्म से लोग अदूली करते हैं, अगर उसके हुक्म को नहीं मानते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी सजा, उस पर सजा मुतय्यन करता है। यही वजह है जिन लोगों ने मदारिस को समझा, उससे इल्म हासिल किया, उसको तरक्की दी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको तरक्की दी। और जिन लोगों ने मदारिस और मकातिब की इज्जत नहीं की, जिन लोगों ने मदारिस को पामाल करने की कोशिश की, जिन लोगों ने मदारिस को मिसमार करने की कोशिश की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी नस्लों के अंदर जहालत को भर दिया। पहली वही, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अल्लाह के नाम से। लेकिन उस उम्मत जिसका पहला मैसेज था, जिसका पहला पैगाम था, पढ़, बदकिस्मती की बात है, वो उम्मत बजाय इक़रा के वो उम्मत ला तक़रा हो गई है, यानी पढ़ने के बजाय ना पढ़ने वाली उम्मत हो गई है। तो मकातिब और मदारिस का तार उस पहली वही से होता है, उस पहली वही से जाकर मिलता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारे अरकम में सहाबे किराम को इकट्ठा करके समझाते हैं, दीन की बातें बताते हैं, तौहीद, रिसालत और आखिरत की बातें बताते हैं। उसके बाद जब मदीना तशरीफ लेकर जाते हैं, सहाबे किराम मस्जिद नबवी में इकट्ठा होते हैं, वहां पे टिके रहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुलाजमत पकड़े रहते हैं, उनके साथ हमेशा बने रहते हैं और साथ में रहकर आपकी मुसाहबत में सहाबे किराम आलिम दीन बनकर निकलते हैं, अपना इदारा खोलते हैं, दूसरे ममालिक में जाते हैं, दूसरे शहरों और खित्तों में पहुंचते हैं और यही मकातिब और मदारिस खोल कर दीन की तबलीग करना शुरू कर देते हैं। असहाबे सुफ़ा, जहां पर सहाबे किराम की तादाद हमेशा मौजूद रहती थी, अच्छी खासी तादाद, वहां पे मकामी लोग उन असहाब की मदद करते थे, उनके खाने का इंतजाम करते थे। और वही असहाब जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से जानिब तलम्मुस तय करके अवाम में निकलते हैं, तो दीन की तबलीग बड़ी मजबूती के साथ करते हैं। हमारे मकातिब और मदारिस का ताल्लुक वही से है। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आता है, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आता है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर, और इसी तरह से दीगर खुलफा का ज़माना आता है। सारे लोगों ने मदारिस को कायम किया, मकातिब को कायम किया और मदारिस और मकातिब कायम करके दीन की तरवीज मुकम्मल तौर पर की। और वहां से होते 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 शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी, जिनके तलामज़ा पूरे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और उसके करीब शहर यानी हिमालय के गोद में उनका पैगाम पहुंचता है, उनके तलामज़ा पहुंचते हैं और उनके तलामज़ा जहां जहां पहुंचते हैं, मदारिस का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह फैला देते हैं। आज हमें समझने की जरूरत है कि मदारिस और मकातिब के क्या फ़वाइद हैं। इन्हीं मदारिस और मकातिब से बड़े बड़े अजिल्ला उलमाए किराम निकले और निकल कर दीन की तबलीग की, दीन की इशाअत की। लेकिन आज इन्हीं मकातिब को, इन्हीं मदारिस को, उनकी तालीमात को जीरो करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। लेकिन अजीज़ाने गिरामी, मैं एक बात बता दूं, मदारिस के क़याम का, मकातिब के क़याम का जो मकसद था, हर जमाने में कामयाब रहा। लेकिन यह 21वीं सदी के अंदर देखने में आ रहा है कि मकातिब के अंदर अजीब व गरीब किस्म का फर्क नजर आया है। मदारिस को उसके मकसद से फेर कर किसी दूसरे जानिब लिया गया, मकातिब को कमजोर करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। लेकिन कमजोर करने की क्या वजूहात है, उसको हमें समझना होगा। क्या असबाब हैं, क्या रीजंस हैं कि उनको कमजोर किया जा रहा है। कुछ दाखिली अवामिल हैं, कुछ खारिजी अवामिल हैं, कुछ हुकूमती पैमाने की चीजें हैं, कुछ अंदरूनी पैमाने की चीजें हैं
जिसे इस प्रोग्राम में आज हम उसको जानने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। हमने प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर से कहा था कि कम से कम 1.5 घंटे का वक्त मिलना चाहिए, लेकिन ऑर्गेनाइजर का कहना था कि इस प्रोग्राम में खुतबा की तकरीबन तादाद 5 या 4 है, सबको 40-40 मिनट दिया जाएगा। मैंने कहा कि यह ऐसा मौजू है कि असबाब और तदारुक अगर गिनाया जाएगा तो यकीनन कम से कम उसके लिए 1.5 घंटा चाहिए, लेकिन इंशाअल्लाह हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि अपनी बात को कम से कम वक्त में, जितना वक्त हमको दिया गया 40 मिनट, उसमें खत्म करने की कोशिश करूंगा। अजीजाने गिरामी, मकातिब का गिरता हुआ जो मेयार है, जो मकासिद फिक्स किए गए थे मदारिस के, आज अगर देखा जाए तो मदारिस की खिदमात, मदारिस की जितनी भी खिदमात है माशरे के अंदर, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। मदारिस मुल्क के लाखों नादार अफराद को न सिर्फ तालीम से बहरावर करते हैं, बल्कि उनकी ज़रूरियात मसलन खुराक, रहाइश, इलाज और किताबों वगैरह की मुकम्मल तौर पर किफ़ालत करते हैं। ये मदारिस की खिदमात हैं समाज के लिए, माशरे के लिए। उसके अलावा मदारिस माशरे में बुनियादी तालीम और ख़ानदगी के तनासुब में माकूल इजाफे का बाइस बन रहे हैं। और उसके अलावा मदारिस आम मुसलमानों के अकाइद, इबादत, अखलाक और मजहबी किरदार का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और दीन के साथ उनका अमली रिश्ता कायम रखे हुए हैं। मदारिस इस्लाम के ख़ानदानी निज़ाम और कल्चर व सकाफ़त के हिफाजत कर रहे हैं और गैर इस्लामी सकाफ़त व कल्चर की जो यलगार है उनके मुकाबले में मुसलमानों के लिए मजबूत हिसार की हैसियत रखते हैं ये मदारिस। आज मदारिस से निकलने वाले लोग जितने भी यलगार मदारिस के ऊपर किए जा रहे हैं, उनकी दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर खड़े हैं, कमर बस्ता है। और उसके अलावा मदारिस इस्लामी अकाइद और अहकामात की इशाअत के लिए मुकम्मल तौर पर मुसलमानों के दरमियान मुकम्मल तौर पर मेहनत कर रहे हैं। और उनके जिम्मेदारान, उनका ताल्लुक जिस मशरब से भी हो, जिस मसलक से भी हो, जिस चीज़ से भी जिनका ताल्लुक हो, किसी भी सियासी बनहज से हो, सारे के सारे लोग मदारिस और मकातिब से जुड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके अलावा मदारिस मादा परस्ती, मफादात, खुदगर्जी और नफ्सा नफ्सी के इस दौर में क़नाअत, ईथार और सादगी की रूहानी अक़दार को मुसलमानों के एक बड़े हिस्से में बाकी करने की कोशिश करता है। अजीज़ान गिरामी, ये मकासिद जिसका तज़किरा हमने किया है, उसके अलावा सबसे बड़ा मकसद, अगर इन मदारिस से हमारे निकलने वाले तलबा के दरमियान अगर 3 फ़वाइद जिसका तज़किरा मैं बराबर किया करता हूँ, 3 मकासिद अगर निकल कर नहीं आते हैं तो यूँ समझिए ऐसे मदारिस, ऐसे मकातिब के क़याम के मुताल्लिक़ हमें सोचना होगा, गौर व फिक्र करना होगा। अगर हमारे मकातिब से, हमारे मदारिस से, बिलखुसूस मदारिस से, बड़े मदारिस से निकलने वाले लोगों के अंदर इबादत का शऊर ना हो, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की खिलकत करने का मकसद क्लियर ना हो और उसके अलावा तज़कियत नफ्स ना कर सकें, तो ऐसी सूरत में ऐसे मकातिब, ऐसे मदारिस के क़याम के बारे में हमें सोचना होगा। यही बुनियादी मकासिद है जिनका तज़किरा हमने किया है। आपके अकाइद का तहफ़्फ़ुज़, आपके इबादत का तहफ़्फ़ुज़ और आपके अखलाकियात और रूह की परवरिश व पर्दाख और रूह की मुकम्मल तौर पर इस्लाह का तहफ़्फ़ुज़ अगर मदरसों से हो रहा है तो यकीनन मदरसे के मकासिद क्लियर है। यहाँ पे लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिसका जिक्र करना ज़रूरी है। ये मकासिद फ़िलहाल मदारिस के अंदर पाए नहीं जा रहे हैं। उसके क्या असबाब हैं? उन असबाब को हमें समझना होगा। वो असबाब जिनकी बुनियाद पर हमारे मदारिस कमज़ोर हो चुके हैं, वो निज़ामी तालीम की कुछ कमज़ोरियाँ हैं। निज़ाम के अंदर ऐसी ऐसी कमज़ोरियाँ हैं जिसकी इस्लाह करने की मुकम्मल तौर पर ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़, मदारिस के मेयार के अंदर जो कमी करने वाली चीज़ थी वो क्या था? निसाब की गैर मेयारी साख्त। यानी मदारिस के अंदर जो निसाब पढ़ाए जा रहे हैं, यकीनन उस पर गौर व फिक्र की ज़रूरत है, उस पर नज़र की ज़रूरत है। उसके अलावा नाक़िस तालीमी मनहज, जो तालीमी मनहज फ़िलहाल मदारिस के अंदर पढ़ाए जा रहे हैं, अगर मदारिस का मेयार घट रहा है, मदारिस
के अंदर तालीम कमज़ोर हो रही है तो उसका सबसे बड़ी वजह क्या है कि निसाब गैर मेयारी है। उस पर गौर करने की ज़रूरत है और उसके निसाब को हालात के मुताबिक बनाने की ज़रूरत है। उसके अलावा मदारिस के अंदर जो निसाब पढ़ाए जाते हैं वो जदीद तकाज़ों के मुताबिक नहीं है। जो भी निसाब पढ़ाए जा रहे हैं वो जदीद तकाज़ों से हम आहंग नहीं है। ज़रूरत है कि मदारिस के अंदर जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएं उसको हालात के मुताबिक ढाला जाए, उसको हालात के मुताबिक रखा जाए। और उसके अलावा गैर मेयारी तदरीसी मवाद, जो भी कंटेंट हम तलबा को देते हैं वो कंटेंट यकीनन इसमें कोई शक की बात नहीं कि जो भी किताबें मदारिस के अंदर पढ़ाई जाती हैं वो सारी की सारी एक नंबर की किताबें हैं, ज़बरदस्त किताबें हैं। लेकिन उन्हीं किताबों के अंदर कुछ बदलाव कर दिया जाए, कुछ इस्लाहात कर दी जाए तो इंशाअल्लाह मदारिस का जो निसाब है वो बेहतर से बेहतरीन हो जाएगा इंशाअल्लाह। उसके अलावा एक सबसे बड़ा सबब मदरसे के अंदर या मकतब के अंदर वो असातिज़ा की तरबियत की कमी, असातिज़ा की तरबियत की कमी ना होने की वजह से आज मदारिस का मेयार गिर रहा है। मदारिस के अंदर ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो पढ़ाने वाले, अगर आप लोगों में से कुछ लोग मदरसे में पढ़ाने वाले हैं तो माजरत के साथ माफ़ कीजिएगा, हो सकता है ये बात कड़वी लगे लेकिन बात सच्ची है। इसकी वजह ये बहुत बड़ी वजह है कि मुदर्रिसीन के अंदर कमियों की वजह से मदारिस का जो मेयार है वो कम हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है। सबसे बड़ी वजह पेशा वाराना मुदर्रिस हमारे मदरसों के अंदर नहीं होते हैं। हमारे मदरसों में ट्रेंड टीचर नहीं होते हैं। हमारे मदरसों में नौजवान हजरात जाते हैं मार्केट में या लोगों से पता करते हैं मौलवी साहब के बारे में और पता करने के बाद औने पौने दामों में लेके आते हैं मौलवी साहब को और वो भी तैयार हो जाते हैं और आते हैं पढ़ाना शुरू कर देते हैं। उनके पास कोई स्ट्रांग डिग्री नहीं होती है, वो ट्रेंड नहीं होते हैं, वो तालीमी मेयार पर खड़े नहीं उतरते हैं, जिसकी वजह से मदारिस का मेयार कमज़ोर से कमज़ोर होता चला जा रहा है। उसकी एक वजह और भी है कि असातिज़ा जो होते हैं मदारिस के अंदर उनकी तदरीसी सलाहियतें कमज़ोर होती हैं। तरीक़े तदरीस बड़ा वीक होता है, बड़ा कमज़ोर होता है। जैसे कुछ मुदर्रिसीन ऐसे होते हैं जिनकी भर्ती तो हो जाती है लेकिन उनके अंदर स्किल नहीं होती है, उनके पास फन नहीं होता है। वो सोर्स लगाकर किसी तरह नाजिम साहब के पास सोर्स लगाकर पहुंच जाते हैं लेकिन उनके पास स्किल ना होने की वजह से, फन ना होने की वजह से, सलाहियत ना होने की वजह से, क्योंकि जाहिर सी बात सलाहियत नहीं होगी तो मुताला नहीं कर पाएंगे और मुताला नहीं कर पाएंगे तो बच्चों के सवालात का जवाब नहीं दे पाएंगे। बच्चों के सवालात का जवाब नहीं दे पाएंगे तो बच्चे मुतमईन नहीं होंगे, बच्चे मुतमईन नहीं होंगे तो वो सब्जेक्ट सही से समझ नहीं पाएंगे और जब बच्चे समझ नहीं पाएंगे तो जिस मकसद से मदरसे का क़याम हुआ है वो मकसद मफकूद है। इसलिए मदरसे का अगर मियार डाउन हो रहा है तो सबसे बड़ी वजह उस्ताद का ट्रेंड ना होना, उस्ताद के अंदर फन तदरीस की कमी होना, नुक्स होना, कमजोरी होना। क्योंकि एक मुदर्रिस अगर ये सोच के पढ़ाता है कि हमारा वक्त 6 घंटे का है, हम 6 घंटी लग गई, क्लास में पहुंचने के बाद देख रहे हैं घड़ी की तरफ, घड़ी जैसे घंटी लगी बाहर निकल गए, वो उस्ताद क्या पढ़ाएगा? जब तक एक उस्ताद के अंदर ये फन तदरीस यानी तदरीस की जो महारत होती है या बच्चों को समझाने की जो सलाहियत होती है वो चीज़ अगर नहीं आती है तो यकीनन ऐसे मुदर्रिसीन से, ऐसे असातिज़ा से मदारिस का मेयार डाउन ही होगा, ना कि ऊपर जाएगा। कुछ मुदर्रिसीन ऐसे होते हैं जो बहुत ही पेशावर होते हैं अपने वक्त को लेकर और अपने काम को लेकर। जब तक एक मुदर्रिस तालीम को, तदरीस को पैशन और मिशन नहीं समझेगा, मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक मुदर्रिस अपने तदरीस को, अपने काम को पैशन और मिशन नहीं समझता है
تو ایسا مدرس کامیاب نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ اپنے پڑھاتے وقت وہ مزہ لے کے نہیں پڑھاتا، ٹینشن فری ہو کے نہیں پڑھاتا، تب تک وہ ایک کامیاب مدرس نہیں ہو سکتا، اپنے اسٹوڈنٹ کو وہ نہیں سمجھا سکتا۔ اس کے علاوہ ایک مدرس ہوتا ہے جب تک وہ کلاس میں کمپلیٹلی فرینڈلی نہیں ہوتا ہے، دوستانہ ماحول نہیں کریٹ کرتا ہے کلاس روم کے اندر، تو ایسی صورت میں ایک استاد اپنے طلبہ کو کچھ نہیں دے پائے گا، وہ کلاس میں جائے گا اور کلاس سے باہر چلے آئے گا۔ ایسے ایسے مدرس ہوتے ہیں جو کلاس میں جاتے ہیں سوتے ہیں۔ آپ خود بتائیے کہ سونے والے مدرسین سے کیا مدارس کا معیار بڑھے گا؟ بالکل نہیں بڑھے گا۔ ایسے مدرسین جو وقت کا انتظار کریں، گھنٹی لگنے کا انتظار کریں، ایسے مدرسین سے، ایسے اساتذہ سے دینی مدارس کا معیار بڑھے گا نہیں بلکہ گھٹے گا۔ ایسے مدرسین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، صحابہ کرام کی زندگی سے سبق لینی چاہیے۔ اس کے علاوہ مدارس اور مکاتب کا جو معیار گھٹ رہا ہے، کم تنخواہوں پر مدرسین کو لا کے سیٹ کر دینا۔ آج کل ایسا بہت ہو رہا ہے۔ ناظم صاحب کو منتخب کیا گیا، ناظم صاحب سے جن کی جمتی ہے، ناظم صاحب نے لا کے اپنے رشتہ دار کو بٹھا دیا، جن سے جمتی ہے ان کو کلاس روم میں لا کے بٹھا دیا۔ کیوں بٹھا دیا؟ کیونکہ وہ کم پیسہ لیں گے۔ کیوں بٹھا دیا؟ کیونکہ ہمارے رشتے میں آتے ہیں۔ کیوں بٹھا دیا؟ بھائی بھتیجا بانجا والا سسٹم لا کے مدرسے میں ڈال دیے۔ اس کی وجہ سے یقیناً مسلمانوں مدارس اور مکاتب کا بہت بڑا خسارہ ہوا ہے کہ کم مراعات پر، کم تنخواہوں پر لا کے اساتذہ کو اپنے مدرسے میں ٹھوس دیا۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے مدرسے کے ساتھ ناانصافی کی، مکتب کے ساتھ ناانصافی کی، آپ نے اس مدرس کے ساتھ بھی ناانصافی کی۔ آپ وہ مدرسین جو مستحق ہیں اچھی تنخواہ کے، وہ مدرسین جو مستحق ہیں کہ وہ کلاس روم میں آئیں، آپ نے ایسے مدرسین کو محروم کر دیا اپنی ایک چھوٹی سی حرکت کی وجہ سے۔ اس لیے ذمہ داران کے لیے ضروری ہے کہ اگر مکتب اور مدرسے کے لیے کسی مدرس کو متعین کریں، فکس کریں، تو ضروری ہے کہ آپ ان کی جانچ پڑتال کریں، ان کی صلاحیت کو دیکھیں، ان کی ڈگری کو دیکھیں اور ان کا معیار دیکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں تاکہ بچوں کا فیوچر برباد نہ ہو۔ اس کے علاوہ مدارس اور مکاتب کی جو معیار کمزور ہو رہا ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ طلبہ کی دلچسپی نہیں ہے۔ طلبہ کے اندر دلچسپی نہیں ہے، وہ نہیں پڑھنا چاہتے ہیں، مولوی نہیں بننا چاہتے ہیں، عالم نہیں بننا چاہ رہے ہیں، قرآن و حدیث نہیں پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اس ماحول میں نہیں پل رہے ہیں، یا وہ ماحول نہیں پا رہے ہیں جو دینی ہو یا شرعی ہو۔ موبائل میں، فیس بک میں، واٹس ایپ میں لوگوں کی تحریریں پڑھ پڑھ کے، مدارس کے خلاف تحریروں کو پڑھ پڑھ کے ایسی تعلیمات سے ایسے بچے، ایسے طلباء بھٹک جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں اور مدارس میں جانا پسند نہیں کرتے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ پینٹ شرٹ پہنیں گے، اسکول میں جا کے داخلہ لیں گے اور مسٹر اور سر کہلائیں گے۔ کیا ضرورت ہے مولوی اور عالم کی ڈگری یا فاضل کی ڈگری لینے کی؟ تو طلباء کے اندر، ہماری قوم کے بچوں کے اندر دلچسپی نہیں ہے کہ وہ مدارس کے اندر جائیں یا مکاتب کے اندر داخلہ لیں۔ ضرورت ہے ذمہ داران کی، گارجینز کی، سرپرستوں کی۔ آپ اس پر غور کریں اور سوچیں، اور جو بھی مکاتب اور مدارس کے ذمہ داران ہیں وہ بھی سر جوڑ کر سوچیں کہ اس کے پیچھے یا اس کے لیے کیا کیا ہم کر سکتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ تعلیمی ماحول کا فقدان ہے۔ جس مدرسے میں ہم پہنچ رہے ہیں، جس مکتب میں پہنچ رہے ہیں، تعلیمی معیار ہی نہیں، ماحول ہی نہیں ہے۔ مولوی صاحب بھی دیہاتی بول رہے ہیں، طلباء جو آئے ہیں وہ بھی دیہاتی بول رہے ہیں، دور دراز سے آئے ہیں بچے، وہ بھی اپنی مادری زبان بول رہے ہیں۔ مادری زبان بولنے کی وجہ سے، اساتذہ کا طلباء کے ساتھ مادری زبان بولنے کی وجہ سے وہ معیار نہیں بن پاتا ہے جو معیار بننا چاہیے مدارس کے اندر۔ اس کے علاوہ تعلیمی سہولیات کی کمی ہوتی ہے۔ تعلیمی سہولیات، بہت ساری مدارس یا مکاتب ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر لائبریری نہیں ہوتی ہے، بچوں کو مطالعہ کرنے کے لیے کتابیں نہیں ہوتی ہیں۔ کچھ مدارس ہوتے ہیں یا کچھ مکاتب ہوتے ہیں کتابیں دیتے ہیں طلباء کو مفت میں، اور کچھ گارجین ایسے ہوتے ہیں کہ ایک ایک مہینہ، دو دو مہینہ ہو جاتا ہے بچوں کے پاس کتاب ہی نہیں ہوتی ہے۔ بچہ پڑھنے جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے،
کوئی پوچھنے والا, بچے کے پاس کتاب ہے کہ نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس لیے جب تک یہ سہولیات فراہم نہیں کی جائیں گی تب تک ہمارا معیار نہیں اٹھ پائے گا. اس کے علاوہ آج کل ہمارے بچوں کے ہاتھ میں اسمارٹ فونز آ چکے ہیں, موبائل, ہر دم ہمیشہ بچے فیس بک کھول کے, یوٹیوب کھول کر کچھ نہ کچھ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں, گیم کھیل رہے ہوتے ہیں. ہر گھر میں موبائل ہے. بچہ رو رہا ہے, موبائل دے دیا آپ نے. بڑا بیٹا موبائل مانگ رہا ہے, ہم نے دے دیا محبت کی وجہ سے. اور وہ بڑا بچہ موبائل سے پڑھائی نہیں کر رہا ہے, موبائل سے کچھ سیکھ نہیں رہا ہے, کچھ اور سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ مدارس کے اندر یا مکاتب کے اندر جو معیار ہونا چاہیے وہ معیار نہیں ہو پاتا ہے. اس کے علاوہ والدین کی بھی دلچسپی نہیں ہوتی ہے. ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایسے کبھی کبھی کچھ بچوں سے ملاقات ہوتی ہے جو ایسے آتے ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے. ان کو پکڑو اور جب سرزنش کرو ڈائریکٹ سیدھے کہتے ہیں شیخ ہمارے ابو نے بھیج دیا ہے اور وہ اتنے ان کے اندر دلچسپی نہیں ہے میرے پڑھنے کے لیے, گھر سے دور کر دیا, جاؤ تم گھر چھوڑو, یہاں رہو گے میرا سر کھاؤ گے, جاؤ مولوی صاحب کا سر کھاؤ. بچوں کو بھیج دیں گے گھر سے, جاؤ مکتب میں تم بیٹھو, مولوی صاحب کا سر کھاؤ, ہمارا سر مت کھاؤ. مدرسے میں بھیج دیں گے, ان کا کوئی لکष्य نہیں ہوتا ہے, ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا, ان کی کوئی منزل نہیں ہوتی ہے, بس ٹائم پاس کرنے کے لیے مکتب کے اندر بھیج دیا, مدرسے کے اندر بھیج دیا. تو جب لوگوں کی سوچ اس ٹائپ کی ہوگی, اس طرح کی ہوگی, تو مدارس اور مکاتب کا معیار نہیں بڑھے گا. عزیزان گرامی, اس کے علاوہ تعلیم کے لیے مناسب رہنمائی بھی نہیں ہوتی ہے. گارجین سمجھتے ہی نہیں کہ ہمارا بچہ پڑھنے کے بعد کیا کرے گا. نہ بچہ سمجھتا ہے نہ گارجین سمجھتے ہیں. کوئی رہنمائی نہیں. بچہ 5 پڑھ لیا, اب 5 پڑھنے کے بعد داخلہ وہاں کسی مدرسے میں جا کے کروا دیں گے. مدرسے سے فارغ ہوا, چلو بیٹا اب آپ کام کرنے کے لائق ہو گئے, چلو کام کرو. یہی سوچ ہے لوگوں کا, یہی سوچ ہے کہ مکمل طور پہ طلباء کی رہنمائی نہیں ہو پاتی ہے, ان کے بچوں کی رہنمائی نہیں ہو پاتی ہے. اس کے علاوہ گھروں کا جو تعلیم, گھروں کا جو ماحول ہوتا ہے وہ بہت ہی گھٹیا ہوتا ہے. مان لیجئے مولوی صاحب نے تو ان کی روحانی تربیت کر دی, ان کو سکھا دیا گالی مت دینا, ان کو سکھا دیا کہ جا کے نماز پڑھنا. مولوی صاحب نے سب سکھا دیا, مدرسے میں ساری چیزیں سیکھ لی, لیکن سیکھنے کے بعد جب گھر میں وہ بچہ آتا ہے تو اس کے والد صاحب اسی کے سامنے ہی اس کی ماں کو گالی دیتے ہیں. اس کا بھائی اپنے دوسرے بھائی کو, اپنی بہن کو گالی دے رہا ہوتا ہے. جس سماج میں وہ بچہ رہتا ہے اس سماج کے بچے گالی دیتے ہیں. تو وہ ایسا جب ماحول ایک بچہ پائے گا, ایک طالب علم پائے گا, تو بنے گا نہیں, بگڑے گا. تو جب اس طرح کے طلباء مکتب کے اندر آئیں گے, مدرسے کے اندر آئیں گے, اور وہاں سے نکلنے کے بعد ان کو صحیح ماحول نہیں ملے گا, تو ایسی شکل میں مدارس اور مکاتب کا معیار بڑھے گا نہیں بلکہ گھٹے گا. عزیزان گرامی, اس کے علاوہ حکومتوں کی کچھ پالیسیاں ہوتی ہیں, کچھ پالیسیوں کی وجہ سے مدارس پر اور مکاتب پر دباؤ ہوتے رہتے ہیں, جس کا تذکرہ کرنا یہاں مناسب نہیں ہے. اس کے علاوہ تعلیمی ادارے, مکاتب اور مدارس کا جو معیار ڈاؤن ہو رہا ہے, ایک سب سے بڑی وجہ ہے کہ ان کے ہاں شفافیت نہیں ہے, کرپشن بہت زیادہ ہے, سیاست بہت زیادہ ہے. اپنے گھر کی سیاست لا کے مدرسے میں ٹھوس دیں گے, گھر کی سیاست مدرسے میں کریں گے, اور اس کی وجہ سے, اس سیاست کی وجہ سے معصومین زد میں آ جاتے ہیں, دوسرے لوگ زد میں آ جاتے ہیں. شفافیت نہیں ہوتی ہے, حساب کتاب لین دین ان کا صاف نہیں ہوتا ہے, جس کی وجہ سے مکاتب اور مدارس بدنام ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ کرپشن, چندہ عوام دیتی ہے مدرسے کو آگے بڑھانے کے لیے, مکتب کو آگے بڑھانے کے لیے, لیکن جو ذمہ داران ہوتے ہیں اس قدر خرد برد کر دیتے ہیں کہ جب ان سے حساب مانگا جاتا ہے تو بھاگتے ہیں حساب دینے سے. یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے مکاتب اور مدارس کا جو معیار ہے وہ ڈاؤن ہو گیا ہے. اس کے علاوہ مدارس اور مکاتب سے نکلنے والے طلباء, بالخصوص مدارس سے,
निकलने वाले तलबा के रोजगार का मसला होता है। यहां से निकलने वाले जो तलबा होते हैं यकीनन दुनिया का सबसे रॉयल पेशा, सबसे दुनिया का सबसे अच्छा काम करते हैं। और वो कौन सा काम? तदरीस का काम, इमामत का काम, मुअज्जिन का काम, कौम की रहनुमाई का काम, जनाजा पढ़ाने का काम, तरावीह पढ़ाने का काम, ये सब काम करते हैं। लेकिन ये सब काम हमारी कौम ने बहुत हल्के में ले रखा है, हल्के में ले रखा। अगर ये मदारिस मकातिब ना होते, कोई जनाजा पढ़ाने वाला नहीं मिलता आपको, ईद की नमाज पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलता। अभी बकरीद आज आखिरी दिन था, अगर ये मकातिब मदारिस के फारिगिन ना होते तो कोई ज़बा करने वाला नहीं होता, आपको कैसे ज़बा करना बताने वाला कोई नहीं होता। इसलिए मदारिस के अंदर अगर मदारिस के लोग अगर चाहते हैं कि उनके यहाँ तलबा की तादाद हो, उनका मेयार बढ़े, तो ज़रूरी है कि अपने मदरसों के अंदर कुछ ना कुछ हुनर सिखाएं तलबा को। हमारे यहाँ कुछ ऐसे मदारिस हैं जो दर्जा 1 से लेकर फजीलत तक की तालीम भी देते हैं और साथ ही साथ तलबा को हुनर भी सिखाते हैं। जैसे लाइट का काम हो गया, पीओपी का काम हो गया, बिजली का काम हो गया, उसके अलावा जूता बनाने का काम हो गया। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें जिन मदारिस के अंदर टेक्निकल हैं वहां पे सारी चीजें सिखाई जाती हैं। इसलिए मदारिस के जिम्मेदारान इस बारे में भी सोचे, गौर करें कि हमारे तलबा फारिग होने के बाद क्या उनके लिए एक ही जिम्मेदारी है? यकीनन वो जिम्मेदारी दुनिया की सबसे अहम और सबसे अच्छी जिम्मेदारी है, लेकिन महंगाई का दौर भी है। लोग मौलवी को बहुत सस्ता समझते हैं। 5,000 10,000 देकर ऐसा लगता है कि उनके ऊपर पूरा एहसान कर दिया, अपना पूरा घर दे दिए। 5,000 10,000 देकर ऐसा लगता है नाजिम साहब अपना पूरा माल, अपनी किडनी उठा के दे दिए मौलवी साहब को। बात ऐसे करेंगे, उनके ऊपर रोब ऐसा जमाएंगे, ऐसे उनको दबाने की कोशिश करेंगे, ऐसा लगेगा पूरा खजाना उन्हीं के ऊपर उलट दिए हैं। कितना? 4,000 5,000 15,000 दे देकर बेचारे ये मौलवी हजरात पर, ये उलमाए किराम पर किस तरह से गलत किया जा रहा है। इसलिए मदारिस के लोग अगर कुछ टेक्निकल प्रोग्राम्स, कुछ हुनर सिखाने के लिए अगर कोई डिपार्टमेंट खोलते हैं तो ये तलबा के हक में मुफीद साबित होगा इंशाअल्लाह। उसके अलावा बाहमी इख्तलाफ मदरसे में या मदरसे का नाजिम बनने के लिए, मदरसे का मेंबर बनने के लिए, मकतब का नाजिम बनने के लिए, मकतब का मेंबर बनने के लिए होड़ लगी होती है। हमारा भी नाम लिख लीजिए, हमको खाजिम बना लीजिए, हमको मुहासिब बना लीजिए, हमको नाजिम बना लीजिए, और बड़े प्यार से आके कहेंगे गांव वालों से मिलके, देखिए फला साहब तो न मदरसा चलाने की सलाहियत है, न मकतब चलाने की सलाहियत है। तो सामने वाला मारे खुश होगा, जब ठीक है आप ही चलाइए, ठीक है मैं देख सकता हूं, समझ लूंगा, कोई बात नहीं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी मकतब का, किसी मदरसे का जिम्मेदार बन जाऊं, आप लोग अगर सपोर्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं बन जाऊंगा। वो डायरेक्ट नहीं करेंगे मुझको बना दीजिए, लेकिन जो बनेगा उसके पीछे लगे रहेंगे, हर मुमकिन उसको परेशान करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई अच्छा काम करने की कोशिश करता है उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। क्यों? एक छोटे से पद के लिए, एक छोटे से ओहदे के लिए एक दूसरे को बदनाम करने की, किरदार कुशी करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। उसके अलावा मदारिस के अंदर, स्कूलों के अंदर एक सिस्टम हमने देखा है कि स्कूलों के अंदर जो कमजोर बच्चे होते हैं, रिमीडियल क्लासेस चलाते हैं उनके लिए। रिमीडियल क्लासेस का मतलब जो कमजोर बच्चे होते हैं उनके लिए अलग से क्लासेस चलाया जाता है कि ये बच्चा सीख ले जाए। हमारे मकतब के अंदर ये चीज नहीं है, हमारे मदरसे के अंदर ये चीज नहीं है। ये भी एक रीजन है कि जो कमजोर बच्चे होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं और वो समाज में कहीं दूसरी जगह पे जाके खपत हो जाते हैं। इसलिए मदारिस को और मकातिब को इस जानिब भी तवज्जो देनी होगी, मदारिस के नौजमा को इस जानिब भी तवज्जो देनी होगी कि अगर कमजोर बच्चा है तो उस पर भी हमें तवज्जो देनी होगी। उसके अलावा मदारिस के अंदर, मकातिब के अंदर एक बड़ी वजह माली वसाइल की कमी होती है।
माली वसाइल की कमी, माल के बगैर कुछ होने वाला नहीं है। लोग बरजस्ता कहते हैं कि दुनिया के पीछे मत पड़ो, दुनिया के पीछे मत पड़ो, लेकिन दुनिया अगर आपके हाथ में नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अल्लाह कुरान में कहता है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रब्बना आतिना फिद दुनिया, मदारिस वालों को अगर मजबूत होना है तो पहले वसाइल को अपने हाथ में लें, अपने हाथ में वसाइल को लें, मदारिस को खुद मुख्तार बनाएं, मकातिब को खुद मुख्तार बनाएं। इस कदर माल की कमी होती है, पैसों की कमी होती है कि उस्ताद आता है, उसके घर में कोई दिक्कत हो जाती है, वो टेंशन में पड़ा रहता है, बेचारा क्या पढ़ाएगा। वो अपनी बीवी के बारे में सोचेगा, अपने बच्चे के बारे में सोचेगा, बीमार है, 5,000 10,000 उसकी तनख्वाह है और 5,000 10,000 एक ही झटके में डॉक्टर ले लेता है, तो ऐसी शक्ल में कहां से वो पढ़ाएगा बच्चों को। उसका दिमाग तो हमेशा बच्चों में लगा रहेगा, अपने बच्चों में लगा रहेगा, अपनी बीवी में लगा रहेगा कि उसकी बीवी बीमार है, उसका बच्चा बीमार है। इसलिए माल की कमी होती है मदारिस के अंदर, वसाइल की कमी होती है। और जो लोग चंदा देते हैं, 2 रुपया चंदा देने के बाद मदरसे में वो अपना हक समझते हैं कि मौलवी साहब आप पढ़ाने नहीं जाते हैं, वहीं दूर ही से देखेंगे मौलवी साहब 2 मिनट लेट हो गए, वहीं से चिल्लाना शुरू कर देते हैं, हम तो मदरसे को चंदा देते हैं, हमारा हक है डिस्टर्ब करना। नाजिम साहब को पकड़ के वहीं सुनाना शुरू करते हैं कि क्या कर रहे हैं, फला साहब ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, फला मौलवी साहब टाइम पर नहीं आते, फला मौलवी साहब पढ़ाते नहीं टाइम से। तो हमारी कौम की हालत ऐसी है कि 2 रुपया चंदा देने के बाद वो आप हक के इख्तलाफ समझती। ये चीज गलत है। कौम के लिए जरूरी है कि अपने मदारिस को मजबूत करे, अपने मदारिस को खुद मुख्तार बनाए, अपने मकातिब को खुद मुख्तार बनाए, वो किसी का मुहताज ना रहे। अगर ये मकातिब, ये मदारिस अगर हमेशा ऐसे ही लोगों की मुहताज रहेंगे तो ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएंगे। और उसके अलावा समाजी मसाइल होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत गरीब होते हैं, बहुत गरीब होते हैं कि वो फीस तक देने के काबिल नहीं होते हैं, या उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं होता है। एक हमारे कौम के अंदर एक सोच ये है कि जब उसका बच्चा 12 साल का हो जाता है तो एक कंप्लीट कैपिटल समझता है। 12 साल का हो गया, 5,000 रुपया किसी होटल में काम करेगा तो 5,000 रुपया कम से कम लाके हमको देगा। ये मजबूरी है, कुछ लोगों की तो मजबूरी होती है, और कुछ लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं कि मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं, जाओ होटल पे सेट कर दो, 5,000 रुपया लाएगा कम से कम हमारा बच्चा। और कुछ लोगों के साथ मजबूरी होती है, हकीकत में उसके घर में कोई नहीं होता है, हकीकत में वो यतीम होते हैं, वो मुहताज होते हैं, समाज के पिछड़े हुए लोग होते हैं, जिसकी वजह से वो अच्छे अच्छे स्कूलों के अंदर, अच्छे अच्छे मदरसों के अंदर नहीं पहुंच पाते हैं। ये सब वजूहात हैं जिसका हमने बहुत ही समेटने की कोशिश की है। ये सब वजूहात हैं। अगर इन सब वजूहात जो हमारे तालीमी मेयार की गिराने का सबब बन रहे हैं, इन वजूहात को ख़त्म कर दिया जाए तो यकीनन इंशाअल्लाह हमारे मकातिब और मदारिस मजबूत हो जाएंगे। पहली चीज़, असातिज़ा की तरबियत होनी चाहिए। ट्रेंड असातिज़ा और डिग्री होल्डर्स, जिनके पास डिग्री हो, उन्हीं असातिज़ा की तकर्री की जाए मदारिस के अंदर और मकातिब के अंदर। और उसके अलावा हम बखूबी जानते हैं कि ये मोबाइल है, अगर उस मोबाइल को हम 1 महीना तक चलाते रह गए और उसको अपडेट नहीं किया तो ये मोबाइल भी बंद हो जाएगा, हैंग हो जाएगा। ऐसे ही अगर मकातिब को और मदारिस को वक्त के साथ आपने नहीं जोड़ा, उस वक्त के साथ शाना बशाना चलना नहीं सिखाया, तो ये मकातिब और मदारिस ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाएंगे। हालात बड़ी तेज़ी के साथ बदल रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौर है, इसलिए आप अपने मदारिस को अपडेट रखें। नेपाल के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ मकातिब को रजिस्टर्ड कराया जा रहा है, मदारिस को रजिस्टर्ड कराया जा रहा है। इस जानिब भी नेपाल के जिम्मेदारान, नेपाल में मदारिस के जिम्मेदारान गौर करें कि जितनी तेज़ी के साथ आप अपने मदारिस का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, मदारिस का एड लेने के लिए, आने वाले कल में कहीं कोई दिक्कत ना हो। आप ये सारी चीज़ें मा लहू व मा अलैह, क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, सारी दिक्कतों को सोचकर, सारे मसाइल को, सारे सवालात को मन में रखते हुए आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाइए। यकीनन रजिस्ट्रेशन करवाइए।
हुकूमत की नज़र में रहें आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हुकूमत की मदद के लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो आप आगे सोचिएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हुकूमत की दखलंदाजी मुकम्मल तौर पर मदारिस में हो जाए। जिस तरह पड़ोस में हुकूमत हर मुमकिन आपके निसाब को बदलने की कोशिश कर रही है, मदारिस को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है, अल्लाह न करे कभी ऐसा हो यहाँ पर भी। इसलिए आप बड़े एहतियात के साथ, बड़ा मुहतात होकर आप ये कदम उठाएं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम एड के चक्कर में, हुकूमत की मदद लेने के चक्कर में हम हुकूमत ही को लाके अपने मकातिब के अंदर, मदारिस के अंदर बैठा दें, और जब हुकूमत आ जाए तो हमको कमज़ोर करने की हर मुमकिन कोशिश करने लगे। इसलिए अजीज़ान गिरामी, इस चीज़ को समझिए और सरजोड़ कर समझने की कोशिश कीजिए। हमारे मकातिब, हमारे मदारिस हमारी शनाख्त हैं, हमारी पहचान है, जो हमें दाखिली तौर पर कुछ कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ खारजी तौर पर उसको कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ अपने हरकतों की वजह से उसको कमज़ोर कर रहे हैं। इसलिए उलमाए किराम को और ज़िम्मेदारान को और हसास लोग, अहले खैर, अहले सरवत, इन तमाम बातों पर गौर करें और सर जोड़ कर बैठें कि मदारिस के हक़ में क्या फ़ायदेमंद और सूदमंद साबित हो सकता है, मकातिब के हक़ में क्या बेहतर साबित हो सकता है। उसके अलावा जाते जाते मैं इशारा करूँगा हमारे उस्ताद मोहतरम शेख नियाज़ अहमद तैयबपुरी, जिनका एक मज़मून है मकातिब का खून हो गया, मकातिब मर गए, मकातिब में असबाब ख़त्म हो गए। इस मज़मून पर तकरीबन मकातिब के अंदर 20 से ज़ायद कमियों का तज़किरा किया है और 20 से ज़ायद इस्लाहात की जानिब लोगों की तवज्जो मबज़ूल कराई है। इसलिए आप उस मज़मून को पढ़ें, जो जिनका भी ताल्लुक़ मदरसे से है, जिनका भी ताल्लुक़ मकतब से है, आप वो इन मज़ामीन को पढ़ें और इन मज़ामीन की रोशनी में अपने मकातिब की इस्लाह करने की कोशिश करें। उसके अलावा आखिरी बात, जमइयात, मकातिब और मदारिस के मेयार को अगर आप चाहते हैं कि बुलंद हो तो इम्तिहानी निज़ाम को मजबूत करना होगा। इम्तिहानी निज़ाम को मजबूत करना होगा। एक मदरसे का पर्चा दूसरे मदरसे में बने, एक मकतब का पर्चा दूसरे मकतब में बने और उस पर्चे के रोशनी में तलबा इम्तिहान को दें, तो इंशाअल्लाह मेरा अपना मानना है कि ऐसी सूरत में मकातिब और मदारिस का मेयार बुलंद होगा। और उसके अलावा जमइयात कंपटीशंस करवाएं। बहुत सारी जमइयात अल्हम्दुलिल्लाह नेपाल में हैं। अगर हर महीने में कोई जमइया मदारिस और मकातिब के बीच में मेयार को बुलंद करने के लिए कुछ कंपटीशन करवाए, कुछ प्रोग्राम करे, तो इंशाअल्लाह नेपाल के अंदर साल भर में 12 बड़े बड़े प्रोग्राम्स हो जाएंगे, जिससे मदारिस और मकातिब का इंशाअल्लाह फ़ायदा हो जाएगा। और उसके अलावा जो जमइयत अहले हदीस है उसकी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। मेरा अपना मानना है कि हर मकातिब का सर्वे करे, हर मदारिस का सर्वे करे और सर्वे करने के बाद मदारिस को की रेटिंग करे कि कौन मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह आगे चल रहा है और किस मदरसे को मज़ीद तरक्की की ज़रूरत है, मज़ीद इस्लाह की ज़रूरत है। ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने पेश करने की कोशिश की। वक्त तो यकीनन कम था और यकीनन कम है। बहुत सारी अभी बातें मेरे सामने थी जिसको हमने शुरू ही नहीं किया, लेकिन वक्त कम पड़ गया। फिर किसी मौके पर इंशाअल्लाह रहेगी ज़िंदगी तो मज़ीद इस मौजू पर गुफ्तगू की जाएगी, बातें की जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मदारिस व मकातिब की इस्लाह कर, हमारे नौजवानों की इस्लाह कर। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल मजीद व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रुन रऊफ़ुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।